نام یہاں سجایا اور قدرتی بات ہے انہوں نے رکھا بھی مسجد کے اندر ہے، اور مسجد میں جو بات ہوگی تو سچی بات ہے وہ وہی ہوگی جو دل سے نکلے گی، اور اللہ ہمیں اس پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مجھ سے زیادہ سینئر علماء بھی یہاں تشریف فرما ہیں، مساجد کے ائمہ بھی تشریف فرما ہیں، مدارس کے محتممین بھی تشریف فرما ہیں۔ پیغام پاکستان عنوان ہے، پیغام پاکستان سیمینار۔ میں مختصر دو چار باتیں اس پر کہ پیغام پاکستان میں ہمارے ذمہ داران نے، ہمارے سیاستدانوں نے، ملک کی تمام مذہبی جماعتوں نے، تمام ذمہ داروں نے مل بیٹھ کر، تمام اداروں نے متفقہ جو فتویٰ اور اعلامیہ جاری کیا، ہمیں اس پہ اعتماد ہے، ہم اس پہ یقین کرتے ہیں۔ یہ ذمہ داری آج سے کئی سال پہلے ادا کرنی چاہیے تھی اس ملک کی خدمت کے لیے، جو کہ نہ ادا کی گئی۔ بہرحال دیر آید درست آید، پیغام پاکستان پہ بیٹھ کر جتنی جماعتوں نے، جتنے اداروں نے، ملک کے پاکستان کی مقتدر شخصیات نے، تمام ذمہ دارانوں نے جو ایک چھت کے نیچے بیٹھ کر، میرے اکابر بھی اس میں موجود تھے، ملک کی دیگر مذہبی جماعتوں کے اکابر بھی موجود تھے، اداروں کے ذمہ داران بھی موجود تھے۔ شکوار پڑھتا چلا جاؤں تو وقت زیادہ ہو جائے گا۔ یہ ایک ایک شک صرف ورقے پہ نہیں لکھی، پاکستان عوامی خدمت پارٹی کے ہر کارکن کے دل پہ لکھی جا چکی ہے۔ جس طرح مجھ سے قبل فوج صاحب فرما رہے تھے، ہمارے رہبر نے، ہمارے مقتدیٰ نے، ہمارے پیشوا، ہمارے چیئرمین محترم جناب مولانا محمد آصف معاویہ سیال صاحب نے نجی محافل ہوں، عوامی تقریبات ہوں، مذہبی اجتماعات ہوں، جہاں بھی درس دیا ہے، ملک سے محبت کا درس دیا ہے، اداروں سے محبت کا درس دیا ہے، وطن کی مٹی سے محبت کا درس دیا ہے، اور ہم اس پہ قائم ہیں، اور ہم ایک ایک شک پر منوان عمل کرنے کے لیے تیار بھی ہیں، کر بھی رہے ہیں۔ ہمیں آزما بھی لو انشاءاللہ، ہم غدار بھی نہیں ہیں، ہم منافق بھی نہیں ہیں، ہم اس وطن کے ذرے ذرے سے مخلص ہیں۔ جو ہمارے لیے پیغام ہماری قیادتوں نے، ذمہ داروں نے متفقہ فتوے اور متفقہ اعلامیہ میں جاری کر کے ہماری طرف بھیجا، ہم نے اس کو سینے سے لگایا۔ مجھ سے قبل میرے بھائی مولانا عمر معاویہ یزدانی صاحب جو فرما رہے تھے، کسی ایک شک کو کسی ایک کے لیے دبا دینا، کسی ایک شک کو کسی کے لیے اٹھا دینا، یہ بھی پاکستان سے محبت نہیں۔ تمام شکیں یکساں ملک پاکستان میں اس پر عمل درآمد کروانا ہمارے جن ذمہ داروں کی ذمہ داری ہے۔ میں امید کرتا ہوں وہ یقیناً اس ذمہ داری کو پورا کریں گے، اور ہم ان کے لیے معاون بن کے، ان کے خادم بن کے، ان کے دست و بازو بن کے، شب و روز ان کے ساتھ کھڑے ہو کے پیغام پاکستان کو ملک پاکستان میں انشاءاللہ نافذ العمل کروا کے اس پہ خود بھی عمل درآمد کریں گے، اور جہاں تک ہماری پہنچ ہوگی، مسجد و منبر و محراب، مصلی اور درسگاہ میں جہاں تک ہماری آواز پہنچے گی، ہم پیغام پاکستان کی صورت میں اس آواز کو مؤثر انداز میں پہنچا کر یہ پیغام دیں گے کہ وطن ہمارا ہے، دھرتی ہماری ہے، شہر ہمارے ہیں، ملک ہمارا ہے، ادارے ہمارے ہیں، افواج ہماری ہیں، سب کچھ ہمارا ہے۔ اور یہ صرف ایسے ہی نہیں کہ منہ بول دینا ہمارا ہے، اس کے لیے سینکڑوں نہیں لاکھوں جانوں کی قربانیاں دے کر 1947 میں ہم نے یہ ملک حاصل کیا۔ ماں بہنوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، بچوں بوڑھوں کے خون کی ندیاں بہائی گئیں، بہت کچھ قربان ہوا اس ملک کی خاطر، اور اس ملک کے ساتھ محبت صرف اسی لیے نہیں کہ ہمیں مل گیا، ہم یہاں رہتے ہیں۔ اس ملک کی ایک تاریخ ہے جو عظیم تاریخ ہے۔ اس ملک سے، اس وطن سے محبت عین ایمان ہے، اس ملک سے، اس وطن سے محبت عین ثواب ہے، اس دھرتی سے محبت، اس کی حفاظت عین ایمان ہے۔ جتنی بھی شکیں موجود ہیں پیغام پاکستان میں، ان میں فرقہ واریت، دہشت گردی، یقیناً یہ کام ریاست کے تھے۔ پوری دنیا میں کچھ ریاستوں نے یہ امور سنبھالے اور دیانتداری کے ساتھ سنبھالے،
फौजी साहब दियानतदारी के साथ संभाले, फिर उन मुल्कों की मिसालें हम बैठ के सुनते भी हैं, देखते भी हैं कि वो मुल्क तरक्की कर रहे हैं। यकीनन रियासत के अंदर रियासत का कायम करना जुर्म है। रियासत के अंदर रियासत के इदारों के खिलाफ बयानबाजी करना जुर्म है। तो इन शिकों में फिरकावारियत, दहशतगर्दी, तकफीरियत, ये इदारों का, ये रियासत का काम है। रियासत इसको निभाए, रियासत इसको बैठकर सुलझाए। हर एक अपने दायरे में रहकर काम करें, कोई किसी को कुछ ना कहे, कोई किसी को छेड़े नहीं, कोई किसी की मुकद्दसात पे उंगली न उठाए, कोई किसी की मुकद्दसात की तौहीन न करे, तो फिर झगड़ा खत्म हो जाएगा, फितना खत्म हो जाएगा, अमन और सुकून हो जाएगा। बहुत देर बाद सोचा हमारे जिम्मेदारों ने, हमारे रियासती इदारों ने, हम पहले भी उनसे कहते रहे, अब भी कहते हैं, तुम मैदान अमल में हो और तुम जिस वतन के लिए कुर्बानी दे रहे हो, सरहदों का पहरा दे रहे हो, तुम जिस वतन के दिफा के लिए पूरी दुनिया के जो आलमी ताकतें हैं, इस्तेमारी ताकतें हैं, जो वतन पाकिस्तान के वजूद से अपने लिए खतरा समझती हैं, जो वतन पाकिस्तान के वजूद को मिटाना चाहती हैं, तुम उनके खिलाफ सरहदों पे पहरा देकर खड़े हो, तुम उनके खिलाफ कुर्बानियां दे रहे हो, तुम उनके खिलाफ अपने सबूत पेश कर रहे हो, तुम उनके खिलाफ मौजूद हो, खड़े हो। हम तुम्हारी पुष्ट पे खड़े हैं, तुम्हारे दाएं खड़े हैं, बाएं खड़े हैं। मैदान अमल में डटे रहना, जहां तुम्हें हमारी जरूरत पड़ेगी मस्जिद मुसल्ला छोड़ के आएंगे, तस्बीह मुसल्ला छोड़ के आएंगे, सब कुछ छोड़ के हम भी तुम्हारे साथ इस वतन के दिफा के लिए ऐसे खड़े होंगे जैसे तुम खड़े हो। रहती दुनिया तक, क़यामत की सुबह तक ये बात नोट कर लें, लिख लें। हम ईमान से कहते हैं, हम जान से कहते हैं, विजदान से कहते हैं और अपने माँ बाप की मोहब्बत के साथ कहते हैं कि जिन्होंने इस धरती पे हमें जना है, जब भी पाकिस्तान पे मुश्किल वक्त खुदा न खास्ता आया, पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी, उसके जिम्मेदारान, उसकी क़यादत, हम बिस्तर, मुसल्ला, मस्जिद, सुकून, आराम छोड़ के पैगामे पाकिस्तान के इस नजरिए के मुताबिक मुल्क का दिफा करते हुए मर जाएंगे, लेकिन किसी नापाक ताकत को इस वतन पे काबिज नहीं होने देंगे इंशाअल्लाह। और ये हमारा अज़्म है, हम इस पे कायम हैं। और उसमें मुसल्ला अफवाद, दीगर सिक्योरिटी इदारों पे कोई किसी तरह के सिक्के निकाल के, ये सब जैसे हमारे अकाबिर ने, हमारे बड़ों ने उसको मुत्तफ़िक़ा फतवे में शरअन हराम लिखा है, हम उस पर एतमाद करते हैं, हम इत्तिफाक करते हैं। तमाम मसालिक के मुफ्तियान पाकिस्तान के अंदर इंतहा पसंदाना सोच के खात्मे के लिए जो काम कर रहे हैं, हम उस पर इत्तिफाक करते हैं, हम उनके साथ हैं। कोई इंतहा पसंदाना सोच नहीं होनी चाहिए, मुल्क की तरक्की में किरदार अदा करना चाहिए। जो कर रहा है, जो कदम रखे हुए है, जो सियासत के मैदान में मुल्क की तरक्की के लिए मुल्क के साथ मुखलिस है, ऐसी मुखलिस क़यादत के सामने बंद नहीं बांधने चाहिए। ऐसी मुखलिस क़यादत को सियासत के मैदानों में पहुंचकर ऐवान में बैठ के मुल्क की खिदमत करना चाहिए। हम चाहते हैं हमारा मुल्क तरक्की करते हुए औज सुरैया की मंजिलों की तरफ बढ़े। हम चाहते हैं दुनिया में हमारा एक नाम पैदा हो। उसके लिए सियासत के मैदानों में, मजहब के मैदानों में जो मुखलिस क़यादत है, उसको ऐवानों तक पहुंचना चाहिए और उसके सामने बंद बांधने की बजाय उनके लिए रास्ता हमवार किया जाना चाहिए। इसलिए कि ये मुल्क, इस मुल्क की बका में हमारी बका है, इस वतन की बका में हम सब बाकी हैं। अगर वतन न रहा खुदा न खास्ता, मस्जिद भी खत्म, मदरसा भी खत्म, मौलवियत भी खत्म, मुफ्तियत भी खत्म, महकमात भी खत्म, हर चीज खत्म हो जाएगी। ये वतन है तो हम हैं और इंशाअल्लाह हम इस वतन की हिफाजत के लिए अगरचे बैरूनी साजिशें हों या अंदरूनी साजिशें हों, हर साजिश का मुकाबला पाकिस्तान अवामी खिदमत पार्टी के प्लेटफार्म से करते रहेंगे इंशाअल्लाह।
किसी साजिश को हम कामयाब नहीं होने देंगे। और इन तमाम शिक्कों में जितनी भी शिक्के मौजूद हैं, गैर मुस्लिम इस्लामी रियासत में रह रहे हैं, मौजूद हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है, वो हमारे मुल्क का हिस्सा हैं, उनको हमारी रियासत ने जो हुकूक दिए हैं उनके मुताबिक वो रह रहे हैं, हम उनका एहतराम करते हैं। हमें शरीयत मुतहरा ने, प्यारे नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा शरीयत ने हमें उनके भी हुकूक बतलाए। और इस्लाम की रूह से ख़वातीन का एहतराम, उनके हुकूक की पासदारी करना, ये भी मर्दों के लिए ज़रूरी है। इस्लाम ने जो रास्ते और उसूल मुतय्यन किए हैं, जैसे मेरे भाई फरमा रहे थे मौलाना उमर मुआविया यज़दानी साहब, इस मुल्क का आईन और कानून कुरान और सुन्नत के मुताबिक है। हम आपकी आवाज़ को, आपके पैगाम को, आपके मुत्तफ़िक़ा फ़तवे और एलामिये को दिलो जान से तस्लीम करते हैं। न वो नुमाइंदे पहुँचने दिए जाते हैं, न वो आवाज़ पहुँचाई जाती है। कुरान और सुन्नत के मुताबिक इस मुल्क को चलाया जाए। इस मुल्क की बका, इस मुल्क की तरक्की, इस मुल्क की खुशहाली, इस मुल्क के अमन, इस मुल्क में रवादारी कुरान और सुन्नत के मुताबिक कायम है, हो सकती है। आप हिम्मत करें, हर महकमे में, हर इदारे में, हर जगह पे कुरान और सुन्नत के मुताबिक आईन की अमलदारी को यकीनी बनाएं, तो इंशाअल्लाह ये मुल्क तरक्की भी करेगा, ये मुल्क अमन का और मुस्तहकम पाकिस्तान भी बनेगा, और इंशाअल्लाह इस मुल्क के दरो दीवार में खुशहाली भी आएगी। तो हम सब के सब, जितने जिम्मेदारान आए, कारकुनान आए, दाएं बाएं जितने हमारे ज़ुआमा, सियासी अहबाब, लीडरान, जिम्मेदारान तशरीफ़ लाए, एक एक का नाम लेना तो मुश्किल है, तो सबका तहे दिल से शुक्रिया है। जैसे सदर साहब ने भी शुक्रिया अदा किया, और क़ैद मोहतरम साहिबजादा हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद आसिफ मुआविया सियाल साहब, उनकी तरफ से भी तमाम अहबाब का शुक्रिया है कि आप आए हैं, और आपके आने का, कदम उठाने का ये अमली सबूत इस बात का कि चूँकि आपको मैसेज मिला, पैगाम मिला कि पैगाम पाकिस्तान के नाम से सेमिनार हो रहा है, तो जुमे का बाबरकत दिन था, आपने सफ़र किया, घर छोड़ा, जुमे की तैयारी करके यहाँ तशरीफ़ लाए कि जुमा भी पढ़ेंगे, पैगाम पाकिस्तान जैसे मुक़द्दस उन्वान पे हम जो है इस गुफ्तगू को भी सुनेंगे, अज़म और इरादा भी करेंगे कि हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं, करते रहेंगे। पाकिस्तान के तमाम इदारे हमारे इदारे हैं, पाकिस्तान के तमाम महकमे हमारे महकमे हैं, जो जहाँ जहाँ काम कर रहे हैं वो हमारे ही मुल्क की सरमाया हैं, हमारे ही मुल्क का वो असासा हैं। हम उनका एहतराम करते हैं, हम उनकी हिफाजत और उनके दस्तबाजू बनने के लिए तैयार हैं, और पैगाम पाकिस्तान की हर शिक पे हम एतमाद, इत्तेफाक के साथ इस बात का इआदा करते हैं कि इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम इस पे अमल पैरा होंगे, और इसको फैलाने में, इसको लोगों में रोशनास कराने में हम इंशाअल्लाह पूरी कोशिश करेंगे, और इस प्लेटफार्म से हम इस पाकिस्तान की तरक्की, हिफाजत और अमन के लिए जद्दोजहद करते रहेंगे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।